Namaste all, a very good afternoon to all of you. I'm Dr. Namrata. I take care of the Department of Patient Care Services in this hospital. Today we have all gathered here to address a very important topic that affects millions of lives across the world. As we know, the month of October is a breast cancer awareness month and it is recognized across the world. They say that 1 in every 8 women are at the risk of developing breast cancer sometime in their lives. In fact, I'm sure all of us all at some point in time have seen a family member, extended family, somebody in our friend circle, friends of friends, affected with breast cancer. Now, in case of all cancers and a lot of chronic diseases for that matter, it may not be always possible to prevent them altogether, because a lot of complex factors play a role in that. But then we do have something in our arsenal that can help prevent the progression of the disease. So early detection is that tool we have at our disposal. And fortunately in breast cancer, we have one such tool available with us, which is so simple, so quick to learn, easy to do, hardly takes any time, and every woman can learn and do it for herself. All it takes is a woman who has the knowledge, the awareness of why it needs to be done and know-how of how to do it, and just dedicate maybe 1 minute of her time in a month to give time to herself, commit herself to this cause. That is called self-breast check or self-breast examination. So today we are gathered here to talk about the simple way of potentially being able to catch breast cancer as early as possible. I would like to welcome our senior consultant, highly experienced doctors, Dr. Anaga Zope madam, Dr. Shubha Sinha madam, who will be throwing light on the nitty-gritties of how to detect, how to treat, what is the life after breast cancer surgery, etc. So now I hand over the stage to Dr. Piyasha Nath Sen, Joint Director Medical Services at Apollo Hospitals, to say a few words. नमस्ते, मैं डॉक्टर पियाशा नाथ सेन, जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज at Apollo Hospitals, Ahmedabad. We at Apollo, we feel that the healthcare must always reach out to the people where they are. It need not be the hospital alone. We have to touch their lives where they are. So when it comes to the women's well-being, it is a force multiplier. Not only the family gets strengthened, but also the community as well as the economy at large. So at Apollo, when it comes to women's health, we feel that it is a national responsibility where Apollo has taken a very big stand and it has joined hands, especially the Apollo Cancer Care centers, where we believe in early detection, timely intervention, and we want to bring about a culture where proactive care becomes the norm. So a simple thing in this campaign, we call it Chocolate. So it was a conscious decision to take dark chocolate as the reminder, not only because of its taste, but because of its health benefits, and to make it seem very simple how a thing like of indulgence, like chocolate, can remind us of self-care. Self-care is, it is basically to empower women, where we would say that self-care is not selfish, but it is essential. We can take out few moments from our daily, busy schedule and make it a ritual, just like the morning tea, and that's would definitely make a difference and help us not only in empowering ourselves but the nation at large. Thank you. Surgeon, Dr. Anaga Zope. Namaste.
बहुत सारे साल जब आप एक ही प्रैक्टिस करते हैं, एक ही डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जब आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हैं, then आपको रियलाइज़ होता है कि सिर्फ ट्रीटमेंट देने से इस रोग को आप ठीक नहीं कर सकते। आपको कम्युनिटी में जाकर ये रोग कितना कम आप कर सकते हैं इसकी कोशिश करनी है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे अच्छी तरह से ट्रीट होने वाले कैंसर में से एक है, लेकिन बशर्ते ये अर्ली स्टेजेस में आए। लेकिन आज भी हमारे देश में 50 to 60% ऑफ महिलाएं जो हैं ये लेट स्टेज में आती हैं, थर्ड और फोर्थ स्टेज में आती है, जब इनका ट्रीटमेंट ठीक से होना मुश्किल होता है। जब इनका ट्रीटमेंट इस स्टेज में जब होता है तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि महिलाएं इससे डर जाती हैं। और यही सब बातें जब समाज में घूमती रहती हैं, तब कैंसर के निदान के लिए अगर हम उनको कहते हैं कि आप आके जांच कीजिए, अपने आप को देखिए, परखिए कि क्या कैंसर के लक्षण हैं, तो महिलाएं डर जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें से ये डर निकाल दिया जाए और इस डर की जगह पर इसमें नॉलेज डाल दिया जाए। एक तरह से महिलाओं को हम एम्पावर करें कि आप अपने हेल्थ के डिसीजंस खुद लीजिए, आप अपने हेल्थ के बारे में जागरूक हो जाइए और ईजीली हो जाइए। पहले हमें कंप्यूटर ऑपरेट करने से डर लगता था। मुझे खुद को जब मैं MS करती थी तो लैपटॉप शुरू करने में मेरे हाथ कांपते थे कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, सारा डेटा उठ गया तो क्या होगा। बट फिर हम कितना सारा उसके बारे में नॉलेज मिल गया, हमें पता चला कि इस तरह से करेंगे, ये कमांड देंगे तो सारा डेटा सेव होता है। उसी तरह से जब आप रोग के बारे में जान लेंगे तो आप इसमें से बचने की जो आपकी क्षमता है या आपके चांसेस है ये बढ़ जाएंगे। आज हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इंसिडेंट सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखा जाता है इंडिया में वो ब्रेस्ट कैंसर है। और अगर आप सोचते हैं तो ये सिर्फ महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है, पुरुषों में इसकी मात्रा काफ़ी कम है। फिर भी इसके एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं किसी भी कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हमें इसके लिए लड़ना है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी मामूली चीज़ जो हम रोज़ बरोज़ एंजॉय करते हैं उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस हम एसोसिएट करें और जिससे महिलाएं इसको एक्सेप्ट करें और महिलाएं इसको सोचें कि मैं भी अपने आप को इससे बचाना चाहती हूँ। और हर महिला अगर अपने ब्रेस्ट का चेकअप करती है खुद, तो इसमें अगर कोई लक्षण आना है तो वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और इनका इलाज सही तरीके से होगा। और इसीलिए ये जो है अवेयरनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं इस रोग से जो है अपना रिस्क कम करें। और ये रिस्क कम कैसे करनी है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, हेल्दी फूड हैबिट्स करना है, एक्सरसाइजेस करना है, अपना वेट जो है कंट्रोल में रखना है और रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करना है। और इसी तहत हम ये एक कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है इसको अपनाएं और अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के खतरनाक जो स्टेजेस हैं इससे बचाएं। डॉक्टर शुभा, आप इसके बारे में और कुछ कहना चाहें? तो जैसा मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, ब्रेस्ट कैंसर जो नाम है वो आजकल बहुत आम हो गया है, पर इसके बारे में जो अवेयरनेस है, जो लोगों को जानकारी है, वो अभी भी इतनी आम नहीं है। अभी भी हमारे पास पेशेंट्स बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, जबकि ब्रेस्ट एक सुपरफिशियल ऑर्गन है और उसको पता चलना बहुत आसान है। सिर्फ हमें अपने हाथ चाहिए हैं, हमें हर महीने स्वतः खुद का ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। और ये जो हमारा कैंपेन है ये हमने चॉकलेट के साथ इसलिए किया है क्योंकि आजकल हम चॉकलेट एज अपने आप को इंडल्ज करने के लिए खाते हैं। जब भी आप चॉकलेट खाएं, आप खुश होएं, इंडल्ज होएं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान भी रखें कि मुझे खुद का ख्याल भी रखना है, मुझे हर एक महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही करना है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, पर आपको समय पे लोगों के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। जितना अर्ली आप आएंगे हमारे पास, उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आप काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल में तो रख सकते हैं, पर हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एम होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएं वो बेहतर है। इसीलिए हर एक महीने का आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही करना है। ये जो चॉकलेट्स के डब्बे बने हैं इसके ऊपर एक QR कोड है। वो QR कोड में एक वीडियो आता है जो आपको बताता है कि आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, जिससे कि हर एक महिला वो वीडियो देख के कर सके। यह ज़रूरी नहीं है
कि उसे पढ़ना आता है या नहीं आता है। ये एक विजुअल इंस्ट्रक्शन है, सब आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं। कब करना है ये, जिन महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उन्हें अपने पीरियड्स के 5वें या 6वें दिन को करना है, और जिन महिलाओं का पीरियड्स बंद हो गया है वो कोई भी एक दिन फिक्स करके कर सकते हैं। पर करना हम सबको है, और हम सबको खुद सीखने के बाद एक और पर्सन को सिखाना है, जिससे कि हम सिर्फ अवेयरनेस अपने तक ना रखें पर हम सोसाइटी में भी फैलाएं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी है वो हम जितना अवेयर होंगे, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ये ठीक हो सकता है। Namaste everyone. I am consultant histopathologist here in Apollo Ahmedabad. We are the doctors behind the scene. Actually, जब भी awareness की बात आती है तो you will think about pain reference, fundraising, vital constitution of doctors. But we are the ones who diagnose. We receive the biopsy and we then diagnose and help. And we, by the integrated approach, we give the diagnosis. अब बायोप्सी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ट्यूमर ही होगा। कुछ लोग क्या गार्ड फील करते हैं कि हाँ गार्ड है, पर वो यही सोचते डर के मारे कि मुझे कैंसर निकला तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बायोप्सी मैनेजमेंट ही हो, पर अगर एक तो अर्ली स्टेज में उसको हम सेव करना है। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करिए और तुरंत ही जितना अर्ली जा सकते हैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जल्दी उसका करें, क्योंकि लेट होने के बाद जब सब जगह स्प्रेड हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द कंसल्टेंट, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, सबके लिए वेरी डिफिकल्ट फॉर। तो अभी ये कैंपेन इसीलिए कि जल्दी अवेयरनेस आए, जल्दी हम सेल्फ एग्जामिन करें और जल्दी भी जांच करें। चंद्रायन के दोनों ही मिशंस में काम किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब उनका ट्रीटमेंट चलता था तो ये हम लोगों को डिसिप्लिन में रखती थी कि मेरा मंगलायन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्द से जल्द मेरी ट्रीटमेंट पूरी हो जानी चाहिए, और ट्रीटमेंट यहाँ कीमोथेरेपी पूरी करके ये इसरो में लैब में गायब हो जाती थी। और फिर हमने इनको रिक्वेस्ट करके रखा था कि जब आपका काम हो जाए तो रात को प्लीज़ हमें एक मैसेज डाल दीजिए कि आप ठीक हैं। तो फिर ये रात को 10:30-11 बजे हमें मैसेज कर दीजिए, हाँ मेरा काम भी हो गया एंड आई एम फाइन, शी इज एडवोकेट। ये अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाओं को जागरूक करती है, शी इज अ TEDx स्पीकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनसे सुनिए कि जब सही तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं और अपने आप को संभालते हैं तो आप कितने अच्छी तरीके से you come back to your own life and you are no longer a patient but you become what you were or better than before. Thank you, ma'am, and respected all doctor dignitaries and the sitting on the dais. Yeah, ma'am, it is true that I have been associated with the ISRO with many legendary missions, Chandrayaan, NISR, RSI series and this. And it is fortunate that I was in this program. But in 2013, as this program is for the breast cancer awareness, so yeah, I am a mother of twin boys, and they were 6 years old, and they used to like lie on my arms. So many times I used to feel very heavy on my right arm, but I used to like say that नहीं बच्चे सो रहे हैं ना तो शायद इसलिए मेरा हाथ दुख रहा होगा. But this was continuous for maybe 15 days or 1 month, and I reached to my our own ISRO doctors, and they recommended to have a checkup. तो मुझे लगा था कि क्यों ज़रूरत है, मैं तो आई एम फाइन, मुझे थोड़ा सा मसल पेन होगा इसलिए ऐसा कुछ नहीं है. सो या इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वी डोंट एक्सेप्ट, जब कुछ भी होता है तो हम ज़्यादा हेसिटेट करते हैं, कोई बड़ा चीज़ निकल ना आए या कुछ ऐसा आ जाए कि हमारी सारी फैमिली लाइफ है, जो हमारा ऑफिस लाइफ है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाए. सो या आफ्टर दैट माई डायग्नोसिस वॉज देयर एंड आई मेट अनागा मैम एंड शी कंसोल्ड मी like very warmly that nothing is going to happen to you, it's just a process and it will be over, and the success rate of this is also very very high since. And he didn't educated me but he educated my family also, because she used to say that कि रिंकू तुम्हारे से ज़्यादा तो तुमको जो केयर करने वाला है ना
उसको बहुत स्ट्रांग बनना है। तुम तो स्ट्रांग बनोगी ही बनोगी, बट तुम्हारा जो केयर करने वाला है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बहुत स्ट्रांग बनना है। या तो शी यूज टू कंसल्ट माई हस्बैंड, माई इन लॉज, that she is going to go through this process and it will take this much of time. She will be behaving like very angry and she will be throwing out everything. But you need to think that she is going through a very hard process and you need to bear with it. And today, when I asked my husband, he used to say that because of Anaga ma'am, we could tolerate that entire pain together, because it's not a patient, it's entire family which is going to be going through this entire ordeal. And in my office, all supported me. As ma'am said that chemotherapy sessions 1 week I used to be at home, but rest of the 21 cycles, so 1 week is that, and 15 days I used to be in office. And initially I was very hesitant because बाल नहीं है, हेयर नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे फेस करूंगी. बट दे यूज्ड टू एनकरेज मी, यही तो तुम्हें दिखाना है, यही तो तुम्हें चलना है, यानी तुम्हें स्ट्रांगली दिखाना है कि मेरे में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल डिजीज एंड आई एम टेकिंग द ट्रीटमेंट. So I used to have scarf on my hair and I used to walk entire from my gate to my building confidently and used to stand in among the colleagues and doing the same project and even getting the recognitions in the projects and awards and everything. So this is what I feel that a support is very much needed. Like हम कई बार घबरा जाते हैं और बोलते हैं अरे आपको ये हो गया है, like बट ऐसा नहीं है. पहले तो सोच लो कि आ गया है तो आपको यू हैव टू बेयर दैट थिंग. कोई भी चीज़ अगर किसी ने कुछ आया है तो यू हैव टू फेस दैट थिंग. So yeah, so entire process 1 year was very tough, no doubt, but I faced it like with a challenge, with support, with love. मैं बताऊँ ना, डॉक्टर्स हमें यहाँ पर ऐसे केयर करते जैसे बेबी की तरह है. आपको कुछ हो तो नहीं रहा, अच्छा हो रहा तो ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे. हमको कंप्लेन करें मौका ही नहीं मिलता था, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन एश्योर्ड दैट you just complete or you go in your routine as it is. Rest is with us. So yeah, thank you so much, ma'am, for giving us so much care and the knowledge to us. And after this, I have come up with my many colleagues. They used to ring me up that how you have gone through this, and even I encourage for early treatments, early tests. And many colleagues have gone up for the test, and luckily in the last checkup they have received the test was positive and it was in very first stage. So she was cured and right now she is cured with the cancer, and because of that test she could be gone through only for the first stage, and entire process was good enough because as all Anaga ma'am and everyone else says that when you prolong the things it becomes worse, because doctors also cannot help us. So it is our duty to give to whenever the signs are there in our body, to recognize that signs and take the actions on it. There is nothing fear in that because it's going to be in our body. हमें भुगतना पड़ेगा फिर. तो पहले ही अगर हम अच्छे से उसको समझ लें तो हमें आगे का रास्ता. Which happens by basically sonomammography, and if results are unclear then we may proceed with MRI. So there are protocols below 40 according to international protocols. We do yearly USG screening of breast, and above 40 we do sonomammography, and both the procedures are different. And if the lesion is detected at the earliest, it really helps in limited surgery, and it's a life-saving procedure. So early detection is the only powerful tool which helps against the breast cancer. So that is one thing. And after 40, with the self-breast, everything goes along with the self-breast examination. So self-breast examination, we explain the patient to do it every monthly because. And I started around 10 years back. I was diagnosed with cancer, and I was around 26, 27 years, and I had a
6-month-old baby. So diagnosis कैसे हुआ मैं वो बताना चाहूँगी because that's relevant to today's topic. I was pregnant and I was aware, so to say, because I used to check my breast every day while taking bath, and I realized there was some lump in my breast. तो मैं चेक करती रहती थी एंड अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ऐसा हुआ सिंस आई वाज प्रेग्नेंट, तो जिनको मैं दिखाती थी उन्होंने बोला कि नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा होता है, लेट द प्रेगनेंसी गो, फिर हम देखेंगे। डिलीवरी हो गया, उसके बाद भी मुझे वो लम्ब था, उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लंबा चला। एक ही मुझे रिग्रेट है तब का कि मैं डॉक्टर अनघा गुप्ता को पहले क्यों नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं उनसे पहले मिली होती तो मैंने बहुत जल्दी इसको ये डायग्नोज हो गया होता। बट एज दे से इट वाज डेस्टिनी, एंड बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर दैट, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू नो, टबू मत समझिए अपने आप को टच करना या कुछ फील हो तो उसको दिखाना या उसके बारे में किसी से भी बात करना कोई गलत बात नहीं है। हमारी खुद की बॉडी है, हमें खुद को हमें ही खुद को अपना ध्यान रखना है। तो स्क्रीनिंग करिए, अपने आप चेक करिए, जैसे उन्होंने बताया है कि वीडियो में देखिए कि कैसे करना है, एंड बी अवेयर दैट इट कुड हैपन, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हो गया तो अच्छा है। इनफैक्ट अगर एवरी मंथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जल्दी डिटेक्ट होगा। मेरे को इतना भी लेट नहीं डिटेक्ट हुआ था थैंकफुली, एंड इफ यू सी मी टुडे 10 years later I am like in perfect healthy condition, and it's all good. So what I would suggest and what I would request all the ladies here is that please do screen yourself. Thank you. Actually, I was suffering from cancer. It was on a 6th stage, and I was very busy in my routine life, my job, and my family. So I did not get much time to, diagnose for checkup and everything. And my family, then my mom is here, my friend. They told me that you should have to check up once, and I'm sorry. बट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, आपका फैमिली, आपकी जॉब, आपकी रूटीन लाइफ सब साइड में रख दीजिए, बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वो फर्स्ट आपकी एस्पेक्ट है, आपकी प्रायोरिटी है। सो आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जब मैंने आफ्टर 6 months मैंने चेकअप करवाया, देन मुझे लगा कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ कि मैंने अपने पे इतना ध्यान नहीं दिया। मेरा 11 ईयर का बेटा भी है, सो मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसको भी इग्नोर कर लिया, कि मैंने अपने पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपने पे इतनी सेल्फिश हो गई कि मैं बिजी हो गई कि मैंने चेकअप तक नहीं करवाया। देन आई वेंट मैनी हॉस्पिटल्स, एंड एट लास्ट I came here, Apollo. I met Dr. Akash sir team, a full oncologist team. I respectfully thankful to them, and then my surgery did Miss Shubha ma'am, and मुझे तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नई लाइफ दी है। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई थी, एंड आई वॉज लाइक देयर इज end of my life, and like it was a darkness in my life. So मैंने सोचा कि no, but my father taught me never give up in life. My brother who is my brother जो अभी मेरे father की जगह पे है, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, you cannot give up, and if you want to give up you can fight, and then